बचपन में हम बहुत सारी कहानियाँ बुक में पढ़ते थे, तब यूट्यूब नहीं हुआ करता था, एनिमेशन तो बिल्कुल नहीं हुआ करता था। ऐसे लगता था जब हम बड़े हो जाएँगे तो इनके लिए मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ करके जाएँगे। तो कार्लो कोलोडी द्वारा लिखित ये जो हम लोगों ने पिनोकियो की जो स्टोरी पढ़ी थी, देखी थी, ये आज आप लोगों को एनिमेशन के रूप में मैंने लाई है। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो भाई। Pinocchio, the Naughty Puppet. Once upon a time, Master Geppetto, an old carpenter, received a gift from his friend Master Antonio. What was this gift, you ask? It was a block of wood. He was very happy and ran home with it. As soon as he reached his little house, Geppetto took his tools and began to cut and shape the wood into a puppet. What shall I call him? He said to himself. I think I'll call him Pinocchio. After choosing the name for his puppet, Geppetto set seriously to work to make the hair, the forehead, and the eyes of the puppet. He was very surprised when he noticed that these eyes moved and then stared at him. Geppetto said, Wooden eyes? Why do you stare? There was no answer. After the eyes, it was time to carve the nose, which began to grow longer as soon as it was finished. It began to grow and grow and grow till it became so long that it seemed endless. Poor Geppetto kept cutting it and cutting it, but the more he cut it, the longer it grew. Next came the mouth. No sooner was it finished than it began to laugh at him. Stop laughing, Said Geppetto angrily. The mouth stopped laughing, but it stuck out a long tongue. Not wishing to start an argument, Geppetto went on with his work. After the mouth, he made the chin, then the neck, the shoulders, the stomach, the arms, and the hands. The legs and feet still had to be made. As soon as they were done, Geppetto felt a kick on the tip of his nose. I deserve this. He said to himself. I should have thought of this before I made him. Now it's too late. He took hold of the puppet under the arms and put him on the floor to teach him to walk. Pinocchio's legs were so stiff that he could not move them. Geppetto held his hand and showed him how to put one foot after the other. As soon as Pinocchio could walk by himself, he started to run all around the room. He came to the open door, and with one leap, he was out into the street. Away he flew. Poor Geppetto ran after him, but was unable to catch him. Catch that naughty puppet. Catch him. Geppetto kept shouting, but those who saw them stood still to stare and to laugh until they cried. टाइम हो गया है हिंदी में इसे सुनने का। भाई पिनोकियो नाम का जो कठपुतली है वो बड़ी नटखट सी थी और इसे लिखने के बाद इसे देखने में तो मज़ा बहुत है। चलो देखते हैं। तो पिनोकियो कट नॉटी मतलब नटखट एक कठपुतली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गेपेटियो नाम का जो आदमी था उसे एक दिन उसके फ्रेंड एंटोनियो ने, वो कारपेंटर था, तो उसके फ्रेंड ने उसे क्या किया, एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा जो टुकड़ा होता है वो उसे गिफ्ट में दे दिया। अब इस लकड़ी के बहुत बड़े टुकड़े से, टुकड़ा तो बहुत अच्छा था और गिफ्ट दिया था फ्रेंड ने, तो उसको तो फेंका नहीं करते हैं क्योंकि फ्रेंड ने दिया है। अब इससे कुछ ना कुछ बनाएंगे और ऐसा सोच के वो घर के अंदर घुस गया। वो बहुत हैप्पी था और हैप्पी मूड में क्या किया, उसका घर तो वैसे छोटा ही था, तो उसने आसानी से उसे काटना शुरू कर दिया। टूल सारे पास में ही थे। अब जब बनाता था तो बनाते बनाते उसने क्या किया, उस आदमी ने एक शेफ बना दिया जो कठपुतली का शेफ था। अब कठपुतली का शेप बनाने के बाद इस कठपुतली को कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तो उसने नाम दे दिया पिनोकियो, जो हम लोगों को बहुत
पसंद है। अब नाम तो दे दिया, अब ये पपेट को और बनाना शुरू कर दिया। तो गैपेटियो जो है ये बहुत सीरियसली अपना काम कर रहा था। बिल्कुल उसे खाने पीने का किसी की इच्छा नहीं, ये सब काम किया। हेयर निकाले, फोरहेड निकाला, आईज निकाल दिए। तो जब वो आईज बना रहा था उसे इतना सरप्राइज हुआ कि जैसे वो आंखें जो बनाई है वो आंखों में से जैसे कि वो पिनोकियो उसको इधर उधर देख देख के फिर उसने उसको गेपेटियो को भी देख लिया और ऐसे आंखें बंद चालू किए। फिर उसकी तरफ कंटिन्यू देखता रहा, ये क्या, मैंने तो लकड़ी से आंख बनाई है और ये हिल कैसे सकती है और ये मुझे घूर कैसे सकती है। इस क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं थे। फिर भी वो अपना अपना काम करता रहा। उस आँख की तरफ देखता था, काम करता था, देखता था, काम करता था। ऐसे करते करते एंडिंग में वो कठपुतली अब पूरी तरह से बनने के लिए बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसका धीरे धीरे कान, नाक, तो जब वो नाक बना रहा था तो नाक बनाते समय उसकी नाक लंबी सी लंबी सी लंबी सी लंबी ही होती जा रही थी, जैसे कि उसे कोई एंड ही नहीं है। अब ये बिना ख़त्म होने वाली नाक को ज़रूरी था काट देना। तो उसने क्या किया, पुअर गैपेटियो ने लिया और उस नाक को काट दिया। उसने सोचा ये बढ़ेगी नहीं। हे भगवान, वो नाक तो फिर से बढ़ गई और जितनी पहले थी उससे भी बढ़ गई थी। उसने सोचा जाने दो, ऐसे रहने दो, मुंह तो बना लेता हूँ। उसने मुंह भी बना दिया। जैसे मुंह बन गया वैसे वो पिनोकियो जोर जोर से हंसने लगा। तो गैपेटियो को गुस्सा आ गया और वो बोला, चुपचाप रहो, हंसो मत। लेकिन मुंह तो नटखट है, वो कहाँ सुनने वाला है। उसने अपने जो लंबी सी जीभ थी, जुबान थी, वो बाहर आके उसे दिखाना शुरू कर दिया। अब गैपेटियो को इसके बारे में ना अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी थी। उसे तो सीरियसली अपना काम पूरा करना था। उसे एक बार उस कठपुतली को पूरा का पूरा बनाना था। गाल बना दिए, नेक बना दिया, शोल्डर बना दिया, हाथ, पैर, पेट, ऐसे सारे चीज़ें वो धीरे धीरे गैपेटियो क्या कर रहा था, लकड़ी से उसे बना रहा था। ऐसे बनाते 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 अब लेग्स एंड फीट जो है वो बनाने का काम उसका चालू था। जब वो पूरी तरह से बन रहा था तभी वो पैर जो है वो उस पिनोकियो ने उठाए और उसके नाक पे एक लात मार दी। ओह! तो गैपेटियो मन ही मन सोचता रहा, इस नटखट कठपुतली वाली को बनाने के लिए तुम्हें जिम्मेदार हो गैपेटियो, इसीलिए तुम्हें ये लात मार रहा है। कोई बात नहीं। अब क्या किया उसने, अपने आर्म्स में इसे ले लिया, कपड़े वगैरह पहना दिए और बोला, चलो अब मैं तुम्हें चलना सिखाता हूँ। और ऐसे बोल के उस कठपुतली को ज़मीन पर रख दिया। और पिनोकियो जो है, पिनोचियो वो अपने लेग्स को इतने, मतलब उसे हिला भी नहीं सकता था, वो इतने कड़क बन चुके थे। उस गैपेटियो बोला कि देखो, टेंशन मत लो, जैसे मैं करता हूँ, एक हाथ मेरे हाथ में दो और एक पैर इधर डालो, फिर दूसरा पैर उधर डालो और इसे धीरे धीरे चलो। ऐसे करते करते पिनोकियो जो है वो चलना भी सीख गया, अपने आप चलना सीख गया। जैसे वो चलना सीख गया वैसे उसने रनिंग करना शुरू कर दिया और जोर जोर से दौड़ने लग गया। जैसे वो दौड़ के घर के बाहर चला गया, मतलब रास्ते पे आ गया, वैसे ही गैपेटियो बेचारा उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा। अब ये जो पपेट है पिनोकियो, ये तो बिल्कुल जैसे कि मानो कि उड़ रहा था, इतने ज़ोर से भाग रहा था। और लोग ऐसे लकड़ी के कठपुतली को पहली बार भागते हुए बड़ी ही हैरानी से, और बहुत मज़ेदार किस्सा लग रहा था। गैपेटियो उसके पीछे और वो लकड़ी से बना हुआ जो लंबी नाक वाला पिनोकियो है ये रास्ते से भाग रहा था। लोग इतना हंस रहे थे, इतना घूर घूर के उसे देख रहे थे, वो हंसते हंसते रो पड़े। इतने लोगों को उसकी हंसी आ रही थी, उसका चेहरा ये सबको देख के। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारी स्टोरी है।
स्टोरी पसंद आई है ना, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।